Hello students, good morning. So today we'll be beginning with a new chapter of grammar, that is lesson number 21, subject verb agreement. Okay, so we'll be doing that chapter today. Before beginning with the concepts being explained in this chapter, I would like to draw your attention to some of the concepts which should be clear as a base in any grammatical statements which you come across. Okay, so basically a sentence has two parts, the subject and the predicate. This you all know very well. So what is a subject and what are the other things which are contained in the predicate? From the predicate we'll consider one of the element which is an important aspect of the predicate. We'll discuss it. So let us move to that. Good morning students. So as I told you before that we are starting with the new chapter. Yes, so I also told you that we have to be acquainted with the two concepts in a statement, in a grammatical statement. Yes, which are the two concepts? That is the subject and the verb. Subject and the verb. Subject is itself a main part of the sentence and verb is a part of the predicate. यस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने सिखाया सेंटेंसेस में, तो वही सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में वर्ब जो होता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेडिकेट का. ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ वर्ब. Subject refers to person, place, thing or idea that is doing something or being something. ठीक है, तो सब्जेक्ट किसको रिफर करता है? इट रिफर्स टू द एजेंट ऑफ द एक्शन in a simpler word. Okay, agent of the action means the one who does that action. कौन वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन किसकी स्टेट ऑफ बीइंग को उसमें डिस्क्राइब किया है, अबाउट whom that sentence is talking about, that is the subject. The subject can be person, it can be about some place, or it can be thing or idea, whatever it is. Okay, that will be the subject. Next is the verb. What is a verb? Verb is nothing but the action words. And what do the action words describe? They describe about the action performed by the subject और state of being. मतलब हमारा ये जो subject है वो क्या action perform करता है उसके बारे में हमारा verb बताता है. So I hope you understood what is a subject and what is a verb. We'll see in detail about that in the given example. The example goes like, Nisha plays basketball regularly. Nisha plays basketball regularly. So, first thing is we have to identify the subject. How will we identify the subject? For identifying the subject, you have to ask the question who. हु किस पे लगाना है? एक्शन वर्ड के साथ. ठीक है, तो हु को बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ आप लगा दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हु प्लेज बास्केटबॉल रेगुलरली. हु प्लेज बास्केटबॉल रेगुलरली. द आंसर इज निशा. सो हु इज द सब्जेक्ट? निशा. अंडरस्टूड? तो आपको हु के लिए जब आंसर मिलता है वो सेंटेंस में से, तो वो हो गया आपका सब्जेक्ट. नेक्स्ट इज हाउ विल यू आइडेंटिफाई द वर्ब. सब्जेक्ट तो मिल गया, अब वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो व्हाट डस निशा डू? तो निशा प्लेस. द आंसर इज प्लेस. सो प्लेस इज द verb. What the subject is doing, what action the subject is doing, तो वो वर्ड जो बताता है कि कौन सा एक्शन, कौन सा स्टेट ऑफ बीइंग वो बताता है, वो वर्ड्स को हम कहते हैं वर्ब. और इस सेंटेंस में क्या है? वो प्लेस. अंडरस्टूड? ओके, सो निशा इज द सब्जेक्ट एंड प्लेस इज द वर्ब. नेक्स्ट इज based on the point of view.
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे आपको 3 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। हमने ये प्रोनाउंस में सीखा था। फर्स्ट वाला पर्सनल प्रोनाउंस, यस, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, third person. First person is the one who is speaking. So right now who is the speaker? Sharanya ma'am. So Sharanya ma'am is the first person. I am the first person. Okay. Second person is the one who is listening. So who is listening? You people. So the students of 6th standard, you are the second person. And the third person is about whom we are talking. About whom we are talking? We are talking about the subject. So subject is our third person. समझ में आया? First person is the one who is speaking. Second is the one who is listening. And the third is the one about whom we are speaking. So you should know what all are the subject that can come in first person, second person and third person. For first person singular, we'll use I. For first person plural, we use we. For second person singular, we will use you, your. Okay. For plural, the same, your, your. And for third person, he, she, it. For singular and for plural, they. Understood? He will go for masculine, she will go for feminine and it will go for neutral. Okay? Understood? So this is the subject based on the point of view. Now we will move to the explanation of subject verb agreement. Now for making a sentence grammatically correct, a verb must agree with its subject in number. ठीक है, अगर एक सेंटेंस को तुमको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, इफ यू वांट टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, दैट इज इट, दैट द हाउ द वर्ब इज यूज्ड, in what number it is used, that is more important. And how will you determine in what number the verb should be used? It will depend on the subject. तो आपका वर्ब और सब्जेक्ट का एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर. यू हैव लर्न्ड अबाउट नाउन्स नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, सीखा है ना? यस, you all know about that. Nouns singular, nouns plural. Yes, ball, balls. Okay, bat, bats. Man, men. Yes, so you all know about that. So those are actually nouns number. Similarly, हमारा जो वर्ब होता है सेंटेंस में, वो और सब्जेक्ट का एक एग्रीमेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट नंबर, दैट इज सिंगुलर, प्लूरल. अब वो कैसे पता चलेगा? लेट अस सी अबाउट दैट. ओके, द वेरी फर्स्ट रूल फॉर seeing or checking the subject verb agreement is, first, if your subject is singular, if your subject is singular, your verb also will be singular. ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा. लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. अंडरस्टूड? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर. सब्जेक्ट प्लूरल, देन वर्ब आल्सो विल बी प्लूरल. लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है? जनरली हमारा जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो हम उसमें क्या लगाते हैं? एस या फिर ई एस, या फिर वो वर्ड ही चेंज हो जाता है. जैसे कि काइट, काइट्स, कार, कार्स, हमने एस लगा दिया है ना. बट हमारा जो वर्ब है वो जब सिंगुलर में होता है ना, तब उसमें एस लगता है, प्लूरल में नहीं लगता. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स. अ टेलर, हाउ मेनी टेलर्स आर देयर? ओनली वन, एक ही है. सो इट इज अ सिंगुलर नाउन.
Our subject is singular. Yes. Stitches. What is he doing? Stitching. So stitches is our verb. So, and what is he stitching? The clothes. That is the remaining part of the sentence. So subject is a tailor. Stitches clothes is the predicate, in which stitches is the verb. Now you can see the very first rule. Singular subject, singular verb. Okay. This is what the rule says. दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. लेकिन मैंने एक चीज़ कहा पहले कि अगर हमारा वर्ब सिंगुलर निकला तो उसमें हम क्या लगाएंगे? एस या फिर ई एस, जो हम प्लूरल में लगाते हैं फॉर नाउन्स. यस, सब्जेक्ट में प्लूरल होता है तब हम जनरली नाउन में एस या ई एस लगाते थे. लेकिन हमारे जो वर्ब्स हैं वो थोड़े अलग हैं. ठीक है, तो वो वर्ब्स जब सिंगुलर होते तब उनको कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए और प्लूरल में उनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए. सो अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स, दैट इज द एग्जाम्पल. ओके, अ टेलर मीन्स सिंगुलर टेलर, stitches the singular form of the verb with s or es and the predicate or the object. Next example is tailors stitch clothes. अब क्या हुआ? सेकेंड सेंटेंस में ये सब्जेक्ट ने इसकी एस ले ली तो इसके पास एस होगा नहीं. सो वो एस किसके पास चला गया? टेलर्स के पास. तो हमारा टेलर क्या हो गया? प्लूरल. बहुत सारे टेलर्स की बात कर रहे हैं अब हम. टेलर्स स्टिच क्लोथ्स. When the verb is plural, it will not have s और es. जब प्लूरल वर्ब होता है उसमें s या es नहीं लगता है. जब सिंगुलर वर्ब होता है तो उसमें s या es लगता है. ओके, सिंगुलर वर्ब्स में s या es लगेगा. प्लूरल वर्ब्स में s या es नहीं लगेगा. रिमेंबर दैट. ठीक है, मैं वर्ब्स की बात कर रही हूँ, नाउन्स की नहीं. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउन्स तो हमारा नॉर्मल है वैसा ही. नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर. नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. बस इनका प्लूरल का टर्म्स थोड़ा अलग होता है. ठीक है, इन लोग जब सिंगुलर होते हैं वर्ब्स तभी उनको एस या ई एस की ज़रूरत है, प्लूरल में नहीं. लेकिन हमारे नाउन्स में ऑपोजिट केस है. एक शॉर्ट एग्जांपल इजीली बता दूँ. अगर आपके सब्जेक्ट में एस नहीं है तो आपके वर्ब में एस लगेगा. ठीक है, और अगर आपके सब्जेक्ट में एस लगा है तो आपके वर्ब में एस नहीं लगेगा. सिंपल एंड ईजी. ओके, सब्जेक्ट में एस है तो वर्ब में एस नहीं आएगा. लेकिन सब्जेक्ट में एस नहीं है तो वर्ब में एस आएगा आएगा आएगा. मतलब सेंटेंस में एक एस तो आना ही है. अब वो सब्जेक्ट में आया तो वर्ब के पास नहीं, वर्ब में आया तो सब्जेक्ट के पास नहीं. क्लियर? ओके, अंडरस्टूड? यस. Yes. Come to the textbook, page number 100. Yes, we have discussed the first point. A verb must agree with its subject in number. I told you, हमारा subject singular तो verb भी singular, subject plural तो verb भी plural. जैसे कि हमने वो एग्जाम्पल में टेलर का देखा था. यहाँ पे किसका दिया है? साइंटिस्ट. अ साइंटिस्ट, ओनली वन साइंटिस्ट डिस्कवर्स न्यू फैक्ट. हमारे सब्जेक्ट में एस है पीछे? नहीं है, तो हमारे वर्ब में एस लगेगा ना? हाँ. और सेकेंड सेंटेंस देखो, साइंटिस्ट्स डिस्कवर न्यू फैक्ट. हमारे सब्जेक्ट में एस लगाया है तो हमारे वर्ब में एस लगेगा? नहीं लगेगा. क्लियर एवरीवन? ओके. रूल नंबर 1, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल. ओके. Second rule, that is in B. A verb must agree with its subject in person. Verb को subject के साथ agree करना पड़ता है in terms of person. First person, second person, third person. Yes, हमने डिस्कस किया था. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या आता है?
आई, प्लूरल में वी। सी, तो आई के साथ क्या हम यूज करेंगे? एम। आई विल ऑलवेज हैव एम ओनली। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। आई सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। ही इज सिंगुलर तो इज ऑल्सो सिंगुलर। अगर वी वाला होता, वी आर happy, we are happy, we is plural, so our subject our verb will be plural. we हमारा सब्जेक्ट था जो प्लूरल में था, इसलिए हमारा वर्ब आर जो है वो भी क्या होगा? प्लूरल। समझ में आया? सेकेंड रूल इज इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर there will be singular verb. If the subject is plural, the verb will be plural in terms of person, that is first person, second person, third person. ओके तो जैसे जैसे पर्सन्स चेंज होता है उसके हिसाब से कभी कभी सब वर्ब्स में चेंजेस आ सकते हैं, बट जनरली विल यूज दिस ओनली। इज आर एम वो सिंगुलर के साथ ही, इज और एम सिंगुलर के साथ ही जाता है, आर जो है वो प्लूरल के साथ। ठीक है, आर वर वो सब प्लूरल के साथ जाते, एंड इज एम वॉज ये सब सिंगुलर के साथ। ओके, अंडरस्टूड? दैट वॉज इन टर्म्स ऑफ पर्सन। Okay. Yes. Third rule. Verb far removed from the subject. Let us see what it is describing. Usually, the verb is placed very close to its subject. Yes. ये सारे सेंटेंस में हमने देखा, ठीक है, इसमें भी देखा कि क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I am happy, we are happy, ये सब में am, is, are ये सब तुरंत सब्जेक्ट के बाजू में दिया है. Yes, it is given immediately after the subject. But what they are saying, usually it is placed immediately after. So we can easily ensure that the two agree with each other. इसके लिए हम easily जज कर पाते हैं कि हाँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, हो गया एग्रीमेंट. दैट वुड बी इजी. बट कभी कभार क्या होता है, वी हैव टू बी केयरफुल इन द यूज ऑफ द वर्ब इफ इट इज फार रिमूव्ड फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट. इफ इट इज फार रिमूव्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट से दूर किया है, किसको, वर्ब को सब्जेक्ट से काफ़ी दूर रखा है, तो हमको ध्यान देना पड़ता है. लेट अस सी द एग्जांपल. द कंडीशन ऑफ दीज बुक्स इज नॉट गुड. जनरली इफ वी लुक एट दिस सेंटेंस, हम बोलेंगे नाउन का है, नाउन का है, हम बुक्स को ढूंढेंगे, है ना. जनरली हम ऐसे ही करते, पहले बुक्स ढूंढ लिया, हाँ बुक्स के पीछे एस लगा है, मैडम ने कहा है बुक्स तो प्लूरल है, मतलब हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो क्या आएगा, आर आएगा. लेकिन नहीं, कभी कभार हमारा जो वर्ब है ना वो हमारे सब्जेक्ट से बड़ा दूर चला जाता है. आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट के अंदर पर्सन भी आ सकता है, प्लेस भी आ सकता है, थिंग भी, और आइडिया कैन ऑल्सो कम. yes, या सिचुएशन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशन, एंड कंडीशन इज सिंगुलर, सो वी विल बी यूजिंग is, which is a singular verb. समझ में आया. जनरली हम बुक्स को ही कंसिडर करते हमारा नाउन के तौर पे या सब्जेक्ट के तौर पे, बट यहाँ पे हमारा जो वर्ड कंडीशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट whom, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द बुक्स, नॉट जस्ट द बुक्स, द कंडीशन. सो द कंडीशन इज द subject. So here condition is singular, therefore we are using is and not are. Okay, समझ में आया. Therefore you should know that the verb should actually agree with the real subject or the actual subject and not the word just placed before it. कभी कभार हमको दिखता है कि हाँ हर एक सेंटेंस में ऐसा हो रहा है, सब्जेक्ट के बाजू में ही वर्ब है, सब्जेक्ट के बाजू में ही वर्ब है, तो हम इजीली उसको देख के लिख लेते हैं. बट नहीं, कभी कभी एक्सेप्शंस तो होता है, एंड ग्रामर इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, यू नो दैट. यस, therefore sometimes the verb is given
after, that is after a great distance from the original subject. So you have to identify about whom or about who the verb is talking. Then only you can identify which is the subject, and accordingly you can decide the verb. Okay, understood? So sometimes the verb is far away from the subject. Clear? Okay. The fourth rule, what is it saying about? It is talking about the introductory there. THERE. There के बारे में बताया है. What it is describing? That normally the subject is placed before the verb. Yes. ये वाले सिचुएशन में क्या था, हम किसकी बात कर रहे थे? वर्ब की बात, कि वर्ब जब दूर होता है सब्जेक्ट से. अब ये वाले सिचुएशन में हम क्या बात कर रहे हैं कि जनरली सब्जेक्ट तो वर्ब के पहले ही आता है. यस, हमने ऊपर का सेंटेंस देखा, द कंडीशन ऑफ दीज बुक्स. ये पूरा हमने सोचा कि बुक सब्जेक्ट है, पर हमको पता था कि कंडीशन है एक्चुअल सब्जेक्ट. और वो कंडीशन किसके पहले दिया है? वर्ब के पहले ही दिया है, वर्ब के बाजू में नहीं. पहले के सेंटेंसेस में भी हमने देखा कि वर्ब के पहले ही दिया होता है सब्जेक्ट, बट कभी कभी एक्सेप्शंस आते हैं. What it is saying? But in sentences beginning with there, THERE there, the real subject is placed after the verb. जो असली सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में आएगा, पहले नहीं. हमने आगे जितने भी सेंटेंस देखे वो सभी में हमारा जो सब्जेक्ट है, द एजेंट ऑफ द एक्शन, वो वर्ब के पहले था. बट अगर आपका सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके वर्ब के बाद आएगा. ठीक है, तो लेट अस सी हाउ इट इज यूज्ड. There are 11 players in a cricket team. There are 11 players. We are talking about whom? We are talking about the players. So players are the subject and it is given after the verb because our sentence is beginning with there. तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे देयर से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हमने वर्ब के बाद में यूज किया. ओके, लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल. देयर इज नो स्टूडेंट इन द रूम. स्टूडेंट्स नहीं है, ओनली स्टूडेंट है. देयरफॉर वी हैव यूज्ड इज एंड स्टूडेंट इज गिवन आफ्टर द वर्ब. ओके, so in the sentence beginning with there, the verb is placed before the subject. Okay, understood? Clear? Okay, now the next rule, the fifth rule, two singular subjects joined with and. ठीक है, if the subject consists of two or more singular nouns or pronouns joined with and, it takes a plural verb. सिंपल है, अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, मतलब वो सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन अगर आपको दो दिया हो, ठीक है, और उनके बीच में क्या कौन सा वर्ड होगा? एंड को यूज किया होगा कंजंक्शन के तौर पे, तो आपका वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल. ऑफ कोर्स एक से ज्यादा सब्जेक्ट है मतलब प्लूरल ही हुआ, तो फिर हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल. सी द एग्जाम्पल. रेखा एंड मधु आर सिस्टर्स. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? टू आर देयर. Rekha, Madhu. So two people are there. So it is a plural subject. Therefore our verb will be plural. Okay. He and I were present in the meeting. वो और मैं, हम दोनों आए थे मीटिंग में. ठीक है. So here again we have two subjects and both are joined with the conjunction and. Therefore we'll be using verb which is a plural verb. Okay. But again we have exceptions. What are the exceptions? Just see. If the two nouns refer to the same person or thing, the verb is singular. लेकिन अगर आपके जो दो नाउन्स हैं वो एक ही इंसान के बारे में बता रहे हैं या एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा?
एक। यहाँ पे रेखा अलग है, मधु अलग है, तो दोनों दो लोग हुए, इसके लिए हमने आर यूज किया। ठीक है, बट जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस, द पोएट एंड नोवेलिस्ट इज नो मोर। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन। जो पर्सन पोएट था वो नॉवेलिस्ट भी था, वो पोएम भी लिखता था, वो नॉवेल्स भी लिखते थे। ठीक है, सो ही इज नो मोर। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक ही इंसान जो पोएट भी था, नॉवेल भी लिखता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्ले खो-खो, so you are a sports player as well as you are a scholar student or the student of class 6th. So I can say the student of 6th as well as the sports, suppose you are the sports captain. So I will say the sports captain and the student of class 6th is present. Means I am talking about the same person. जो 6th का वो बच्चा है, जो स्पोर्ट्स कैप्टन भी है, वो आज प्रेजेंट है। समझ में आया? तो वैसे ही सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी इज एन एमिनेंट सोशल वर्कर। वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन हु इज द प्रोड्यूसर एज वेल एज द डायरेक्टर। ही इज परफॉर्मिंग टू रोल्स। ठीक है, तो व्हेन द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग टू रोल्स एंड बोथ द रोल्स आर joined with the conjunction and, we will use a singular verb and not a plural. But if we are talking about two different subjects in the same context, ठीक है, हम दोनों अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं लेकिन दोनों की एक ही बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम आर यूज करेंगे क्योंकि रेखा अलग है, मधु अलग है, ही अलग है, आई अलग है। ठीक है, बट यहाँ पे पोएट और नॉवेलिस्ट एक ही इंसान था, हम एक ही के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे। और दूसरे केस में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सेम ही इंसान प्रोड्यूसर है, सेम ही इंसान डायरेक्टर है, तो सिंगुलर पर्सन हुआ, तो फिर हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। अंडरस्टूड? टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड विथ एंड। फर्स्ट केस दोनों डिफरेंट, सब्जेक्ट विल बी प्लूरल बिकॉज बोथ आर डिफरेंट, सो वी हैव टू। बट इन द सेकेंड केस both the subject is describing about single person, therefore we'll be using singular verb. Next, sixth rule, with as well as. When the subject consists of two nouns or pronouns joined with or as well as, the verb agrees with the first of them. अगर पहले के सेंटेंस में हमने देखा एंड के बारे में, अब हम देखेंगे विथ या एज वेल एज। अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट में दो प्रोनाउन या दो नाउन है और उनको ज्वाइन करने के लिए हमने विथ या फिर एज वेल एज का यूज किया है, तो वर्ब जो आप यूज करोगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जाएगा। समझ में आया? द कैप्टन विथ all the players is present in the ground. How many subjects are there? Two are there. The captain with is a conjunction, all the players. So but we have used is. हमने is use किया है और is है हमारा verb. वो किसके साथ एग्री कर रहा है? कैप्टन के साथ। समझ में आया? तो अगर आपके सेंटेंस में with या फिर as well as दिया हो तो समझ जाने का आपका जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ जाएगा, सेकेंड के साथ नहीं। कभी कभी सब्जेक्ट में टू पार्ट्स होते हैं, दो नाउन हो सकता है, दो प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, तो उसमें आपको फर्स्ट वाला ही कंसिडर करना है, सेकेंड वाला नहीं। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ऑल द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड। सारे प्लेयर्स और कैप्टन ग्राउंड पर प्रेजेंट है। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द प्लेयर्स, वी आर फोकसिंग ऑन देम, देयरफॉर वी हैव यूज्ड आर। ठीक है, इसके लिए हमने क्या यूज किया? आर यूज किया, इज नहीं। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था? ऑल द प्लेयर्स, इसके लिए आर, और इसमें कैप्टन था तो इसके लिए इज। ओके, नेक्स्ट इज ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, वन ऑफ द। अगर आपके सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड दिया हो,
ठीक है, इनमें से कोई भी डिमॉन्स्ट्रेटिव्स दिया हो, what you will do, you will use the singular verb. आपको singular verb ही use करना है. Easy rule, very easy rule. Yes, sentence में each दिया हो, either दिया हो, neither, everyone, one of the, any of these five is given. Okay, one among any of these five is given, you will use a singular verb. Example, each of these sisters sings well. Each दिया है, we have used singular form of the verb. ऐसा लगता है ना singular verb में. Either of the two candidates is perfect for the job. Either, so is. Neither is. Everyone knows. One of the has. ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस में दिया हो तो समझ जाने का कि उसका वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर. क्लियर? ओके. नेक्स्ट रूल, either dot 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 or neither dot 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 nor. It is in pair. ठीक है, either or की one pair है, neither nor has one pair. ठीक है, we'll use these two words together. We will use these two words together. When the two subjects are connected with either or neither nor, the verb agrees with the latter subject. मतलब अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और वो दोनों सब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आपने आइदर और को यूज़ किया है या फिर नाइदर नॉर को यूज़ किया है, तो आपका जो वर्ब होगा दैट विल एग्री विद द लैटर सब्जेक्ट, मतलब सेकेंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा. विथ और एज वेल एज में क्या था, फर्स्ट के साथ एग्री कर रहा था और यहाँ पे सेकेंड के साथ. Let us see. Either the manager or the employees were telling a lie. यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, were, and were is the plural form. So it is supporting the second subject, that is the employees. Employees plural है, इसके लिए हमने plural verb यूज़ किया. Okay. Neither the moon nor the stars are shining today. मून और स्टार्स दोनों शाइन नहीं कर रहे, बट स्टार्स आर प्लूरल, सो वी हैव यूज्ड अ प्लूरल वर्ब. ओके, इफ योर सेंटेंस कंटेन्स ईदर और नाइदर नॉर, द वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट. ओके, क्लियर? नेक्स्ट रूल, मच एंड अ लिटिल. मच एंड अ लिटिल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है, मच और अ लिटिल होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा. ओके, मच हैज़ ऑलरेडी बीन सेड. मच है तो हमने हैज़ यूज़ किया. यस, अगर यू ऑल नो अबाउट दैट, हैज़ एंड हैव आर यूज्ड विद द परफेक्ट टेंसेस. सो हैज़ इज फॉर सिंगुलर एंड हैव इज फॉर प्लूरल. बट एज वी सेड, मच और लिटिल के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब. देयरफॉर मच के साथ हमने हैज़ यूज़ किया और ओनली अ लिटिल ऑफ द वर्क हैज़ बीन completed. Here we have used has, and here also we have used has. So much and little will always have singular verb. Okay, the last rule, many, a few, several, both. ठीक है, if the sentence contains many, a few, several, both, it will take a plural verb. उनके साथ कौन सा verb लगेगा, plural. Example, many of these students were absent yesterday. Many is used, we have used a plural verb. A few of these houses are still vacant. Are is again a plural verb. Several of the shops are closed today. And the last, both of these guests have arrived. So if the sentence contains many, a few, several, both, we will use plural verb. Okay, understood the subject verb agreement? So this, the summarization of the whole chapter is given in this table. Okay, just go through it.
Now we'll be doing the exercise. Exercise number 1. Fill in the blanks with suitable words. जो ब्रैकेट में दिया है उनको यूज करके आपको fill in करना है. First one, 2 and 2 dash 4. 2 and 2 make 4. We are talking about that 2 only. So the answer will be make. Okay. Next, this you will do in homework. Third one, much of my time dash been wasted. Much के साथ क्या लगेगा? Has, singular. So has will come. Neither of these two books dash interesting. Neither use किया है. You have to think. Neither nor दिया है सेंटेंस में. Nor वर्ड दिख रहा है. Nor नहीं, तो फिर इसमें सेकेंड वाला रूल नहीं आएगा, इसमें फर्स्ट वाला रूल. ठीक है. एंड व्हाट इज दैट रूल सेइंग कि अगर नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन दिया हो तो क्या आएगा? सिंगुलर. सो नाइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज इंटरेस्टिंग. ओके. सिक्स्थ वन, आइदर यू और, इधर दोनों दिया है, आइदर भी दिया है और भी दिया है. आई एम इन द रॉन्ग. Okay, here we are using the singular. Why we are using the singular verb? We are using it according to the subject, the second subject. हमने you के हिसाब से नहीं यूज किया, I के हिसाब से यूज किया, इसके लिए हमने am लिखा. Okay, remaining you have to do on your own. I'll be sending you the answer key, that time you can check it out. Okay. Exercise 2. Fill in the blanks with the suitable words. Again you have to use the brackets to fill it out. First one, neither the captain nor his men dash afraid of fighting. Neither nor. So हम second वाला subject लेंगे. What is the second subject? Men. तो क्या लगेगा? Plural are. Okay. Third one, one of the passengers dash a qualified doctor. One of the passengers. बहुत सारे में एक, उसके साथ क्या लगेगा? Singular verb. So we'll be using was. There dash dark clouds in the sky. There दिया है sentence में. So clouds are given after the verb. So clouds are plural. So our verb will be plural. So we are using are. Okay. Seventh one, rice and curry is his favorite dish. Again, rice and curry is a single dish. It's in pair. Bread butter, bread jam, okay, cream biscuit, cream and biscuit, likewise. So which are in pairs, वो चीज़ों को हम singularly consider करेंगे. Okay, so rice and curry is his favorite dish. I hope it is clear to you. You have to solve both the exercises, okay, in the textbook itself. No need to write in the notebook. Okay. I hope you have understood. All the very best for the exercise solving. Have a nice day.